Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, the topic that I had chosen for you today is about articles from your grammar portion. Students, you know that there are three important articles in English language. When we see at the higher level, almost from the literature point of view, there are more than 400 articles. But the basic articles, the foundation, which we all know in our earlier classes, uh, about which we must have good acquaintance, we must have good information. Those are in the form of article a, article an, and article the. So, with respect to these three articles, we are having a good classification about articles. We classify articles as definite articles and we classify articles as indefinite articles. When we talk about definite articles mostly they are being termed as those articles that are specified, that are used with proper nouns, mostly proper nouns. और वहाँ पर हमारे पास एक आर्टिकल आता है that is being called as the. So the is an definite article. And these are being termed as indefinite articles जो mostly हम use करते हैं कम nouns के साथ. या we will come across where these indefinite articles are being used, जहाँ पर इनकी usage होती है. Now when we talk about article a, तो article a mostly use किया जाता है when we see a sentence and it is being followed by an adjective before a noun. एक adjective noun से पहले आता है, वहाँ पर हम article a को use करते हैं. For example, that is a dull boy. That is a dull boy. Boy उसके सामने dull आता है, तो dull के उससे पहले it is being preceded by article a. So that is a dull boy. Now we are having many indefinite articles like article a is there, an is there. We will see these are being used before countable nouns. Countable nouns when those countable nouns are in the singular number. Singular number. Countable nouns आप समझते हैं those nouns that can be counted. For example, हमारे पास है car is here, table is here, book is here, pencil is here, chair is here, Indian is here, umbrella is here, elephant is here, eye is here. A pad हम बोल सकते हैं. A car is here, a table is here, a bird, a chair, an egg हम बोल सकते हैं, an eye हम बोल सकते हैं, an elephant हम बोल सकते हैं, an umbrella हम बोल सकते हैं, an Indian हम बोल सकते हैं. So that is इनको हम बोलते हैं countable nouns. तो mostly when countable nouns they are in singular number, वो singular number में है, single हैं, तो वहाँ पर हम article a या an का इस्तेमाल कर सकते हैं. आर्टिकल ए कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, लेट अस सी. आर्टिकल ए कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है मोस्टली जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड हमारे पास होता है. फॉर एग्जांपल ए लाइन इज हियर, या ए बुक हम बोल सकते हैं, ए वुमन, ए गर्ल, ए मैंगो, ए कोला. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट केस में व्हेन देयर इज ए कॉन्सोनेंट साउंड और ए वर्ड दैट बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट लेटर, देयर आर्टिकल ए इज़ बीइंग यूज्ड. आर्टिकल ए हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी साउंड निकलती है यू जैसी, या यू वाई यू की साउंड या वाई ओ की साउंड निकलती है, तो वहाँ पर हम मोस्टली देखते हैं कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म, यू की आवाज़ निकलती है, तो वहाँ पर ए यूनिफॉर्म हम बोल सकते हैं, नॉट एन यूनिफॉर्म. ऑल्दो इट इज़ बीइंग प्रोसीडेड बाय द लेटर यू, इट इज़ अ वोवेल साउंड, बट वहाँ पर हम मोस्टली ये डिपेंड्स अपॉन द फोनेटिक और इट डिपेंड्स अपॉन द सेलेबल पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पर यू की साउंड निकलती है, तो यहाँ पर मोस्टली हम इसको बिगिन करते हैं आर्टिकल ए से. या ए यूनिक अचीवमेंट, ए यूनिक अचीवमेंट, ए यूटेंसिल फैक्ट्री, ए यूजफुल मशीन, या ए यूरोपियन. यू वाई यू की आवाज़ निकलती है, वो ई साइलेंट रहता है, तो इसको हम एज ए जब इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम देखते हैं तो इसको हम यू वाई यू की साउंड से लेते हैं, तो वहाँ पर हम मोस्ट लिखते हैं ए यूरोपियन, नॉट एन यूरोपियन. इट्स रॉन्ग बट इट्स ए यूरोपियन. यहाँ हम बोल सकते हैं ए यूनिवर्सिटी, नहीं एन यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते, ए यूनिवर्सिटी. इट्स यू 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 साउंड, वाई डबल ओ की साउंड निकलती है. या ए यूक्लिप्टस ट्री, ए यूक्लिप्टस ट्री, ए यूक्लिप्टस ट्री. दूसरा केस है आर्टिकल ए का. तीसरा आर्टिकल हम देखते हैं
We use article A before beginning with oh giving the consonant sound of WA. Walk. For example, a one-eyed giant. Wa. One. A one O N E की मगर ये साउंड देता है W जैसा. WA की साउंड वा. A one-eyed man. हम एन वन आइड में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वन ओह एंड ई वन ये डब्ल्यू ए जैसी आवाज़ देती है विद रेस्पेक्ट टू इट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक्स या विद रेस्पेक्ट टू इट्स साउंड. ए वन रुपी कॉइन. ए वन ओ एन ई वन ये डब्ल्यू ए की आवाज़ देती है. ये तीसरा स्टेटमेंट है जहाँ पर हम ये तीसरी कंडीशन है जहाँ पर हम आर्टिकल ए को यूज़ कर सकते हैं. वी आर हैविंग सम अदर कंसिडरेशन जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई लेटर स्टार्ट होता है एच से मगर वो उसकी एच साइलेंट रहती है. साइलेंट साउंड एच वहाँ पर हम देखते हैं कि यूज़ होता है ए. फॉर एग्जांपल ए हाउस. हाउस. हीरो. ए हीरो. ए होटल. ए होटल. ए 100. ए हॉस्पिटल. ए हिस्ट्री. ए हुरी. ए होम. तो ये मोस्टली ये तमाम वर्ड्स हैं जहाँ पर हम एच देखते हैं ये साइलेंट रहता है तो उसके सामने ए लगता है एज आर्टिकल. देयर इज़ वन मोर. कभी कभार हम देखते हैं कि विद इन नाउन कॉम्प्लीमेंट. नाउन कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम यूँ बोल सकते हैं ही इज़ ए डेंटिस्ट. वो डेंटिस्ट उसका नाउन कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट हम जो दैट एड समथिंग मैन एक एडजेक्टिवल टाइप ऑफ फॉर्म होती है जो नाउन की मीनिंग को ऐड करता है. सो ही इज़ ए डेंटिस्ट. ही इज़ एन डेंटिस्ट. डेंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं. या हम बोल सकते हैं शी इज़ ए पेंटर. पेंटर इज़ ए नाउन कॉम्प्लीमेंट उसके सामने लगता है ए. या हम बोल सकते हैं शी इज़ एन एक्टर. या हम बोल सकते हैं इट वॉज एन अर्थक्वेक. तो ये तो हम फिफ्थ कंडीशन है. नाउ सिक्स कंडीशन में हम देखते हैं कि कोई भी बार हम एक्सप्रेशन देते हैं क्वांटिटी का. फॉर एग्जांपल ए लॉट ऑफ. ए कपल. ए डजन. ए ग्रेट मैनी. ए ग्रेट डील ऑफ. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम क्वांटिटी एक्सप्रेशन देखते हैं मेजरमेंट के हिसाब से वहाँ पर मोस्टली हम यूज़ करते हैं ए. यहाँ कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स हम यूज़ करते हैं. कुछ नंबर्स के साथ ए लगता है. 100. ए 1000. या बिफोर हाफ एंड when half follows a whole number. For example हम कभी 1.5 kg. 1.5 kg एक हाफ और जब एक हाफ होल नंबर को फॉलो करता है. या हाफ ए किलो ऐसे भी हम बोल सकते हैं. या कभी कभार हम बोल सकते हैं ए आर्टिकल यूज़ होता है इन एक्सक्लेमेटरी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. कभी कभार हम देखते हैं कि वी आर हैविंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. वहाँ पर हम कभी कभार देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी नोट्स होते हैं वहाँ पर. फॉर एग्जांपल सच अ लॉन्ग क्यू. व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वहाँ पर एक्सक्लेमेशन है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल ए यूज़ होता है. या व्हाट ए चार्मिंग सीन. व्हाट ए चार्मिंग सीन. ठीक. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मोस्टली आर्टिकल ए यूज़ होता है. ज़रा ना वी विल कम अक्रॉस ओमिशंस. ये ओमिशन आर्टिकल ए का और एन का कहाँ कहाँ पर यूज़ हमें इसको कहाँ कहाँ पर ओमिट करते हैं कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ नहीं करते हैं. पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि हाँ मैं भूल गया यहाँ से आर्टिकल एन का. ज़रा हम उसके बाद देखेंगे आर्टिकल एन. पहले हम इन दोनों का मिलो जुले देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर ओमिट होते हैं ये कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं. नंबर पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि बिफोर प्लूरल नाउन्स. जब हम प्लूरल नाउन्स देखते हैं कि उनके साथ हम देखते हैं कि ये आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हम यूँ नहीं बोल सकते हैं ए बुक्स. या यूँ नहीं बोल सकते एन बुक्स. या एन एलिफेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एलिफेंट बजाती खुद एलिफेंट्स एंड ऑफ एन एलिफेंट इज़ द एलिफेंट. एलिफेंट्स तो हम वो नहीं बोल सकते एन एलिफेंट्स या ए एलिफेंट्स. नो. तो ये पहली कंडीशन है जहाँ पर हम देखते हैं कि इनको हम ओमिट कर सकते हैं. दूसरी कंडीशन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स आप समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है मिल्क. सैंड इज़ हियर. वाटर इज़ हियर. शुगर इज़ हियर. वी कांट काउंट दीज नाउन्स. आई मीन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पर हम मोस्टली देखते हैं कि हम ये नहीं बोल सकते हैं ए आर्मी या ए मिल्क ए वाटर ए सैंड. नहीं. कभी कभार हम देखते हैं बिफोर नेम्स ऑफ मील्स except when these are being preceded by an adjective.
जो खाना हमारे पास होते हैं उनके सामने हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता ये कि अगर ये मील्स प्रोसीड होते हैं एडजेक्टिव्स, प्रोसीड का मतलब है कि अगर इन खानों से पहले हम कोई एडजेक्टिवल वर्ड डालते हैं तो फिर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ब्रेकफास्ट एट 9, मगर अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरे सेंस में ऐसे बोल सकता हूँ ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट तो है मगर उसके पहले मैंने लगा दिया एडजेक्टिव गुड, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है मैं आर्टिकल ए का यूज़ करता हूँ। ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट। ज़रा पहले सेंटेंस को हम दोबारा देखेंगे। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 9, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ दीज इनडिफरेंट आर्टिकल्स, चाहे ए या एन वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। ये दूसरी बात। कभी कभार हम देखते हैं now we will come across with one more important article, that is आर्टिकल द, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ज़रा हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड डिनोटिंग ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन विच इज़ वेल नोन, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं या जो पर्टिकुलर होता है, ख़ास होता है, जो स्पेसिफिक होता है उसके सामने। फॉर एग्जांपल आई मेट द चेयरमैन या आई मेट द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन एक स्पेसिफिक की पोस्ट है तो हम उसके सामने लगाते हैं द। या चेयरमैन हमारे स्कूल का खास होता है, या हमारे स्कूल का हेडमास्टर आई मेट द हेडमास्टर, तो द वहाँ पर लगता है। या हम बोल सकते हैं यूँ भी दिस इज़ द बैट विच यू गिव मी, ये वो बल्ला है, ये वो बैट है जो आपने मुझे दिया, तो द बैट वहाँ पर स्पेसिफिक बिकॉज दिस बैट इट परटेन्स टू समवन स्पेशल। या दिस इज़ द सचनस बैट, ये सचनस बैट है, वहाँ पर ये सचिन का बैट ही स्पेसिफिक है। तीसरी बात, बिफोर ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर टू डिनोट ए क्लास और काउंट। फॉर एग्जाम्पल द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये सिंगुलर नाउन है, हमारे पर्टिकुलर क्लास या काइंड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी खासियत है। यहाँ हम बोल सकते हैं द पेन इज माइटियर देन द सवर्ड, द पेन इज माइटियर देन द सवर्ड। द लोटस इज द किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स, लोटस इज स्पेसिफिक फ्रॉम ए क्लास ऑफ फ्लावर्स, इसकी एक अपनी पिक्युलरिटी है, इसकी एक अपनी स्पेसिफिसिटी है, तो हम वहाँ पर द यूज़ करते हैं। अब तीसरी कंडीशन, बिफोर द नेम्स ऑफ, बहुत सारी ऐसे ऐसे स्पेसिफिक सीज के सामने रिवर्स, गुल्फ्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स, विंड्स, बेज, माउंटेन रेंजेस हैं। नॉट ओनली ए सिंगल माउंटेन बट ए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, एंड बिफोर आइलैंड्स नॉट ओनली ए सिंगल आइलैंड बट ए चेन ऑफ आइलैंड्स, उनके सामने हम लगाते हैं द। मिसाल के तौर पर द अरेबियन सी, द गोमती, द कावरी, द गुल्फ ऑफ मनार, द पनामा कैनाल, द गोबी डेजर्ट, द सहारा, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, the trade winds, the Bay of Biscay, the Bay of Bengal, the Himalayas, but not the Mount Everest। हम नहीं बोल सकते हैं Mount Everest is one of the chains or lofty peaks of the Great Himalayas, ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ अगर हम बोलना ही है हम बोल सकते हैं the Great Himalayas, not the Mount Everest, the Andaman and Nicobar Islands, ऐसे बोल सकते हैं। द यूज़ होता है प्रॉपर नेम्स के साथ, जैसे कि हमारे पास होते हैं शिप्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, होली बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। मिसाल के तौर द टाइटेनिक, आप समझते हैं कि पुराना एंशिएंट जहाज़ यूरोप में जो पैसिफिक ओशन में डूब गया, तो मोस्टली एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जहाज़ है द टाइटेनिक, उस पर उसके नाम पर एक पिक्चर भी बनी हॉलीवुड में। द गोमती, हाँ द जला भारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द इंडियन एक्सप्रेस है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, द गीता, द ताज, द रेड फोर्ट, ऐसी ऐसी, या द होली कुरान, ऐसे बोल सकते हैं। या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, वर्ल्ड इवेंट्स जो पूरी दुनिया में हुई हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। द मुटिनी, द ग्रेट मुटिनी, द ग्रेट फेमाइन, द वर्ल्ड वॉर, द इंडो पाक वॉर। या कुछ नेचुरल फिनोमेना हैं, द साउथ नेचुरल फिनोमेना, द सन, द मून, द स्काई, द हिल्स। या डायरेक्शंस हम देखते हैं कि वी आर हैविंग 4 इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ, उनके सामने लगता है द। या वी आर हैविंग, कभी कभार हम देखेंगे जो प्रॉपर नाउन्स हैं, प्लेसेस हैं, जो बनी होती हैं ग्रुप्स कंपाउंड वर्ड से। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, द उत्तर प्रदेश, द यूपी हम बोल सकते हैं यूपी, द
USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, कंपाउंड वर्ड से बनी है, ये प्रॉपर नाउन है। द पंजाब, या कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज होती हैं जो हिस्टोरिकल फैमिलीज होती है जिनका कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल द तगलुक्स, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, या द खुलर्स, द उपलस, द कपूर्स, द मल्होत्रास, या कम्युनिटीज़, वी आर हैविंग कम्युनिटी जो मैंने आपको सामने रखी है। द क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, द सिख्स हैं, द हिंदूज हैं, द फ्रेंच हैं, द इंग्लिश हैं। कभी कभार हम जब एक एडजेक्टिवल फॉर्म अंडरस्टूड है उसके सामने भी लगता है द। फॉर एग्जाम्पल द पोर, द रिच। कभी कभार हम सुपरलेटिव डिग्री जो वर्ड्स की होती है, द रिचेस्ट मैन, द टॉलेस्ट मैन, द बेस्ट प्लेयर, द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। कभी कभार हम देखते हैं कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज दैट डिग्री व्हेन कंपैरिजन इज बीइंग मेड बिटवीन मोर देन वन। मोर देन वन से हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस डिग्री को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जहाँ पर कंपैरिजन होता है बिटवीन मैनी, वन एमंग द मैनी इज बीइंग चूजन, उसका एक स्पेसिफिक एडजेक्टिव होता है, उस वक्त उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। बट कंपैरेटिव डिग्री वो होती है when comparison is being between two or more than one. For example, Kamla is taller of the two sisters. Ram is the abler of the two brothers. Now we will see कहाँ कहाँ पर ये आर्टिकल द ओमिट होता है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। Before names of places or before names of people except in certain special circumstances. For example, before abstract nouns except when they are being used in a particular sense. Men fear death, हम यूँ नहीं बोल सकते men fear the death ना, men fear death. Yeah, we are having before names of games. He plays the cricket नहीं बोल सकते, he plays cricket simply, he plays football, he plays hockey. Before names of meals, I had breakfast in the morning. I had the breakfast नहीं आएगा, I had the dinner नहीं आएगा। After and noun in the possessive case, the father is a boy, हम यूँ नहीं बोल सकते the father is the boy is the father, नहीं, the boy is father, the boy is sister। पॉजिटिव केस में हम बोल सकते हैं कि द यूज़ नहीं होता है। यहाँ आर्टिकल द इज ऑल्सो नॉट यूज बिफोर होम, बिफोर चर्च, बिफोर हॉस्पिटल, बिफोर प्रिजन, बिफोर स्कूल एंड बिफोर वर्क, सी एंड टाउन। ही इज़ एट होम, ही इज़ एट द होम नहीं आएगा, ही इज़ एट होम। So these are the general conditions or many conditions where we see that article the is not used or it is being omitted or obsolete or it is deleted or it is not commonly used. Dear students, I hope these are the general conditions where we see that these three types of articles are widely used. I hope you may have understood. Wish you good luck. Thanks.